So exchange rate is the topic for discussion today, and exchange rate is the price of a currency in terms of another currency, right? So, for example, if we consider the price of $1 in Pak rupees, that is $1 is equal to Pak rupees 280, right? So this is exchange rate of dollar in terms of Pak rupees. एक्सचेंज रेट की हमें ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी हैव टू बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जैसे पाकिस्तान अगर इंपोर्ट करवाएगा किसी और कंट्री से तो जनरली वी हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ पाक इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, राइट। तो इसलिए हमें अपनी करेंसी को ट्रांसलेट करना होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड देन वी कैन बाय गुड्स from other countries. Similarly, if we sell to other countries, again, exchange rate is set in terms of dollars because dollar is a world leading currency and that is generally accepted everywhere. Okay, so exchange rate set कैसे होता है? जैसे हमने कहा कि $1 is equal to 280 rupees. So how exchange rate is set in the market? There are three kind of exchange rate systems. One is free floating exchange rate, other is managed floating exchange rate, and the third one is fixed exchange rate system. लेकिन याद रखें आपका जो सिलेबस है उसमें खाली एक एक्सचेंज रेट सिस्टम शामिल है, सो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली दैट इज कॉल्ड लाइक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे करेंसी की वैल्यू जो है दैट इज सेट इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी थ्रू फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी। तो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो मेन रोल होता है वो किस चीज़ का है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी का होता है। So demand and supply of currency play a vital role in determining exchange rate or price of a currency in terms of another currency. नेक्स्ट है कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है। सो हाउ टू मेक द ग्राफ फॉर फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम? सिंपली आपको एक्स पे क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स शो करना है या जिस भी करेंसी को आप डील करें, right? So if you're dealing with dollars, so quantity of dollars on X, and on y-axis we can just write down exchange rate, right? So this is exchange rate of dollar basically in terms of another currency. जैसे यहाँ पे in this case we are talking about Pak rupees. So exchange rate of dollar in terms of Pak rupees. First of all, like draw the demand of currency curve. So this is negatively sloped like a normal demand curve. So this is demand of dollar. And then you have to draw another graph that is supply of dollars that is positively sloped, like just like a normal demand and supply curves. And जहाँ पे दोनों meet करते हैं, this is the point of equilibrium where demand and supply meet each other. And if we draw the perpendicular and connect it to the x-axis, then we will find out equilibrium quantity of dollars, that is Q. And if we connect this point to the y-axis, then we will find exchange rate of dollar in terms of Pak rupees, like $1 is equal to 280 Pak rupees. So this is how like the exchange rate of one currency in terms of another currency is set through free floating exchange rate system using demand and supply of that currency. And next, like this kind of exchange rate is highly volatile, mean it keeps changing with the changes in demand and supply of currency, right? किसी भी करेंसी की जब डिमांड इंक्रीज होगी, जिस करेंसी की भी डिमांड इंक्रीज होगी दैट विल अप्रिशिएट, और जिस करेंसी की डिमांड डिक्रीज होगी उसकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। And if supply of currency increases, then that currency will depreciate. And if supply of currency decreases, that currency will appreciate, right? So depreciation and appreciation are used to determine the value. If value has increased, that is called appreciation of currency. And if value decreases, that is called depreciation of currency, right? So now we will like look into how exchange rate changes under free floating exchange rate system and why does it depreciate or appreciate.
Okay, so we can like write down changes in equilibrium exchange rate, ठीक है जी। सो एक्सचेंज रेट कैसे चेंज होगा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो रीजन है हम देख लेते हैं, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर्स। यहाँ पे मैं डॉलर की डिमांड की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग बेसिक करेंसी एज डॉलर। सो आप करेंसी चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर्स। इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसका डिमांड कब राइट को शिफ्ट हो जाता है, अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड कब लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड अगर करेंसी या कोई भी प्रोडक्ट होगी उसकी डिमांड या सप्लाई डिक्रीज करेगी तो डिमांड एंड सप्लाई को लेफ्ट को शिफ्ट हो जाते हैं। Keeping in mind the same principle, now we can draw another graph where we will like draw an initial equilibrium position and then we will incorporate increase in demand in that graph. So Y pe again we are talking about exchange rate and on X we have quantity of dollars. So this is demand of dollar and this is supply of dollar. देखिए ये नॉर्मल बेसिक ग्राफ आपको पहले से ड्रॉ करना होता है, तभी आप उसमें चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर यहाँ पे पॉइंट ई पे मीट कर गए, जहाँ पे जब हम इसको एक्स एक्सिस के साथ कनेक्ट करेंगे, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, एंड इफ वी कनेक्ट इट टू द वाई एक्सिस देन वी विल फाइंड आउट exchange rate of $1 against Pak rupees. Like $1 can purchase 280 Pak rupees. अब हम मूव करते हैं कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो एज अ बेसिक प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया था कि डिमांड ऑफ डॉलर विल शिफ्ट टू द राइट। इनिशियल डिमांड हमारे पास डी थी तो न्यू डिमांड का विल बी D1, जो कि ये राइट को शिफ्ट हो गया। अब मैं इसको एरो के साथ भी शो कर रहा हूँ कि राइट विल शिफ्ट हुआ। एंड नाउ वी विल फाइंड एन अदर इक्विलिब्रियम पोजिशन दैट इज E1। E1 से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं देन वी विल फाइंड एन अदर क्वांटिटी दैट हैज इंक्रीज्ड। इसका मतलब है कि अब आपके पास क्वांटिटी ऑफ डॉलर ज्यादा ट्रेड हो रही है। पहले क्वांटिटी क्यू ट्रेड हो रही थी, ये कोई क्यू नंबर होगा, लेट्स से $100 मिलियन ट्रेड हो रहे थे, अब आपके पास $150 मिलियन ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पॉइंट E1 को मैं कनेक्ट करता हूँ वाई एक्सेस के साथ तो मुझे पता चल जाएगा कि $1 जो है उसकी प्राइस अब 300 पाक रुपीज के इक्वल होगी। मीन $1 इज नाउ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू $1 इन द पास्ट। लाइक 280 का होता था, अब 300 का हो गया। And I believe you can easily understand कि which currency has depreciated and which has appreciated. Depreciation mean कि the value of currency is in depreciation is value of currency decreased and appreciation is value of currency has increased. So यहाँ पे जिस currency की value increase हुई है वो है dollar. So dollar has appreciated. So dollar has appreciated because now $1 can purchase more पाक रुपीज। पहले $1 280 पाक रुपीज बाय कर सकता था, बट नाउ इट कैन परचेज 300 पाक रुपीज। इट मीन्स के डॉलर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई। और पाक रुपीज की पी के आर की क्या वैल्यू पे फर्क पड़ा, पी के आर की वैल्यू डिप्रिशिएट की है बिकॉज पहले आपको $1 बाय करने के लिए you had to pay 280 Pak rupees to buy $1, but now you have to pay 300 Pak rupees to buy $1. It means your currency has depreciated, right? And the second like reason of shift in demand curve or decrease in value of currency or decrease in demand and its impact on the value of currency can be shown as like there is, for example, decrease in demand of dollar. याद रखें जिस चीज की डिमांड डिक्रीज करती है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। सो डिक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर, अगर डॉलर की डिमांड कम हो जाए तो डॉलर की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल है। आप सिंपल मैंगोज की बात कर लें, मैंगोज को अगर लोग बाय करना कम कर दें तो मैंगो सस्ता हो जाता है। जैसे वो एक डॉक्टर साहब थे, मैं नाम नहीं ले सकता उनका,
जिन्होंने कहा था तरबूज में टीका लगा होता है, मत खाओ तरबूज, याद होगा आपको। तो लोगों ने एकदम उसके ऊपर अमल करते हुए खौफ ज़दा हो गए थे और उन्होंने तरबूज खरीदना कम कर दिए थे। तो तरबूज सस्ते हो गए थे बहुत। सेम इज द केस विद डॉलर्स। आप समझें कि डॉलर तरबूज बन गए, ठीक है, और इसके बारे में रूमर्स हैं कि इसकी वैल्यू कम होने वाली है, ये एक अच्छा करेंसी नहीं होने वाला इन द फ्यूचर, तो एवरीवन विल स्टॉप परचेजिंग इट। So on Y we have exchange rate and on X we have quantity of dollars। ये हमारे पास डिमांड ऑफ डॉलर्स है, ये हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स है। डिमांड ऑफ डॉलर्स हमारे पास, इसको हम लेबल कर देंगे, सप्लाई ऑफ लेबल को लेबल कर देंगे। एंड जहाँ पे दोनों मीट करेंगे दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वी विल फाइंड आउट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हियर एंड वी विल फाइंड एक्सचेंज रेट हियर। सो एक डॉलर इनिशियली 280 रुपए का, 280 रुपीज का है। Now, if there is fall in demand of dollars, then demand of dollar curve will shift to the left। Basic principle है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो राइट को चले जाते हैं, डिक्रीज करते हैं तो लेफ्ट को चले जाते हैं। इक्विलिब्रियम हमारा ई से ई वन पे आ जाएगा। एंड नाउ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज डिक्रीज टू क्यू वन। और पॉइंट ई वन को जब हम वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट करेंगे तो नाउ वैल्यू ऑफ डॉलर हैज डिक्रीज टू 250 पाक रुपीज। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, तो डेफिनेटली डॉलर डिप्रिशिएट हो गया, क्योंकि नाउ $1 कैन परचेज लेस पाक रुपीज। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डॉलर हैज डिप्रिशिएटेड। और पीकेआर के साथ क्या हुआ पाक रुपीज, इट हैज अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड मीन कि नाउ यू कैन परचेज डॉलर विद लेसर पाक रुपीज। पहले आपको ज्यादा पाक रुपीज देने पड़ते थे, 280 में $1 मिलता था, अब 250 में मिलता है, सस्ता हो गया। ठीक है, डॉलर अगर इस केस में देखें तो। एंड द थर्ड लाइक थिंग इज के अगर सप्लाई इंक्रीज करे तो फिर क्या होगा। थर्ड सिचुएशन इज फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में थर्ड सिचुएशन इज लाइक इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर्स, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर्स। सिंस डॉलर को हम बेसिक करेंसी लेके चल रहे हैं तो सारी डिस्कशन हमारी डॉलर पे ही हो रही है। ओके, सो अगर डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। जैसे अगर सिंपली हम किसी प्रोडक्ट की एग्जांपल लें, जैसे मैंगोज है, मैंगोज की जिस टाइम पे सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो मैंगोज की प्राइस भी कम हो जाती है, यानी मैंगो चीपर हो जाते हैं। इसी तरह ये रूल हर चीज पे अप्लाई होता है, करेंसी पे भी अप्लाई होता है। अगर आप करेंसी को ओवर सप्लाई करते जाएंगे तो उसकी एक्सचेंज रेट कम होता जाएगा। दिस इज डिमांड ऑफ डॉलर, दिस इज सप्लाई ऑफ डॉलर, राइट। सो डिमांड ऑफ डॉलर को आप लेबल कर दें, सप्लाई ऑफ डॉलर को लेबल कर दें, एंड देन इक्विलिब्रियम आपके पास जो दैट इज टेकिंग प्लेस एट ई। यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी डिटरमिन करें तो हमारे पास क्यू है, और एक्सचेंज रेट डिटरमिन करेंगे तो 280 रुपीज पर डॉलर है। एंड नाउ इफ देर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर तो बेसिक प्रिंसिपल है सप्लाई राइट को शिफ्ट हो जाएगी। इनिशियल सप्लाई ये था, न्यू सप्लाई का विल बी टू द राइट हैंड साइड ऑन दिस साइड बेसिकली। सो नया सप्लाई का हम यहाँ पे कहीं ड्रॉ करेंगे एंड द न्यू सप्लाई कर्व इज S1। और नया इक्विलिब्रियम हमारे पास E1 पे आ जाएगा। E1 से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज होगी डॉलर्स की, but we can see that currency has depreciated, like dollar has depreciated because now $1 can purchase less Pak rupees। Okay, so हमने अब यहाँ पे सिर्फ किया क्या, सिर्फ हमने सप्लाई को राइट फिल शिफ्ट किया। सो जो चीज चेंज हो रही है उसी को ही हमने शिफ्ट करना होता है। सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो डिमांड को शिफ्ट करेंगे। अब टेक्निकली इस ग्राफ के हिसाब से कौन सी करेंसी अप्रिशिएट की है। डॉलर पहले 280 का था, अब 250 का हो गया, मतलब डॉलर डेप्रिशिएट कर गया। एंड पी के आर पहले एक डॉलर बाय करने के लिए 280 पी के आर देना पड़ते थे, अब पी के आर कम देना पड़ते थे, तो मतलब
करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, पाक रुपीज जो है दैट हैज अप्रिशिएटेड। एंड द लास्ट सिचुएशन इज लाइक डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर। अगर सप्लाई ऑफ डॉलर डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर, अगर सप्लाई ऑफ डॉलर डिक्रीज करेगी तो डॉलर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, इसको भी हम ग्राफ से देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक मॉडलिंग आपको सारा सिनेरियो बता देती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करें। ग्राफ आपको खुद ही बता देगा कि व्हाट हैज हैपेंड टू समथिंग। नाउ वी हैव एक्सचेंज रेट ऑन वाई एंड क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स ऑन एक्स। दिस इज नॉर्मल डिमांड कर्व, नॉर्मल सप्लाई कर्व। इनको लेबल भी कर दें, ये डिमांड ऑफ डॉलर है एंड दिस इज सप्लाई ऑफ डॉलर। जहां पे दोनों ग्राफ्स मीट कर जाएं, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास क्वांटिटी है Q एंड वी हैव एक्सचेंज रेट इक्वल टू 280 पाक रुपीज। अब अगर सप्लाई ऑफ डॉलर कम होती है तो सप्लाई कर्व बेसिक प्रिंसिपल है कि लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्टवर्ड तो नया सप्लाई कर्व कहीं S1 पे पहुंच जाएगा, दिस इज S1 एंड एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम मूव्स फ्रॉम पॉइंट E टू E1, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम Q टू Q1 एंड एक्सचेंज रेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 280 टू 300 पाक रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डॉलर पहले 280 का होता था, अब 300 का होगा, तो डॉलर की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा, डॉलर हैज अप्रिशिएटेड। और पाक रुपीज की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा, PKR हैज डिप्रिशिएटेड। क्योंकि अब पहले आपको एक डॉलर 280 पाक रुपीज में मिल जाता था, अब एक डॉलर को बाय करने के लिए 300 रुपीज आपको देने पड़ते हैं। मीन्स कि आपके पैसों की वैल्यू कम हो गई, यानी पाक रुपीज की वैल्यू कम हो गई है, जबकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, बिकॉज डॉलर इज नाउ एक्सपेंसिव एज बिफोर, लाइक एज कंपेयर टू द वैल्यू बिफोर, राइट। सो ये मेरे पास था एक्सचेंज रेट, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सेट कैसे होता है, कैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है कि बताएं कि एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोटिंग के थ्रू कैसे सेट होता है और कैसे डेप्रिशिएट करता है और कैसे अप्रिशिएट करता है। तो आपको ये ग्राफ्स बना के दिखाने होते हैं। सो डेप्रिशिएशन की क्या क्या रीजन थी, यहाँ पे अगर सम अप कर दूं, यहाँ पे सम अप कर दूं तो डेप्रिशिएशन की क्या क्या वजह थी। अगर करेंसी की डिमांड कम हो जाए या फिर करेंसी की सप्लाई सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाए तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। फिर इनके ये ग्राफ्स बना के दिखाएंगे। एग्जामिनर वैसे आपकी बात को नहीं मानता, आप उसको इकोनॉमिक मॉडलिंग करके दिखाएंगे कि इकोनॉमिक मॉडल ऑल्सो सजेस्ट दिस। इसी तरह से अप्रिशिएशन की क्या कॉजेज होती हैं, अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी की, अगर करेंसी की डिमांड बढ़ जाए या फिर उसकी सप्लाई कम हो जाए। डिमांड बढ़ने से, सप्लाई कम होने से करेंसी अप्रिशिएट करती है। कैसे करती है, इसकी भी इकोनॉमिक मॉडलिंग करके आप ग्राफ के थ्रू बताएंगे। और ग्राफ मैंने पूरे ऊपर सारे बना दिए थे, यू कैन लाइक रिव्यू देम अगेन। ठीक है बेटा। सो लाइक दिस इज इट फॉर लाइक काइंड ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड डेप्रिशिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट थ्रू फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इसमें क्या कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं अभी। ठीक है जी।